Hello everyone. In previous classes, we have seen the structure of the stamens with the anthers, within the anthers, the pollen sacs and the formation of the pollen grain, the development of the pollen grain. So male side, male gametophyte development we have studied. We will now try to study stepwise the female gametophyte development. Female gametophyte is going to be formed within the ovule. Ovule is a part of the gynoecium. So let's quickly take a review of the gynoecium and its parts. Within that, the ovary, and within that, the ovule. So in a typical flower, there is of course the thalamus with calyx, corolla, androecium with stamens and anthers, and gynoecium with stigma, style and ovary. ये सब मिलके फीमेल पार्ट्स रिप्रेजेंट करते हैं. इसी को मैग्नीफाई करके अगर हम अलग से निकालेंगे तो देन वी विल गेट टू सी दैट देयर इज अ एक्सपैंडेड सरफेस एट द टॉप. एक्सपैंडेड इन द सेंस कि थोड़ा सा खुला सा, फैला हुआ सा, सो दैट पोलन ग्रेन कैन बी रिसीव्ड ऑन दिस. इसके लिए इसको थोड़ा सा एक्सपैंडेड सरफेस दिया गया है, which is usually a little moist and sticky. That is stigma. So let us mark this as stigma. S-T-I-G-M-A. ये stigma है. This is the receptive surface of the gynoecium. There is a long, slender, stalk-like structure, एक डंडी के जैसा, through which pollen tube has to grow. That is called style. This is called S-T-Y-L-E. So, आप जो बातों में कहते हैं कभी कोई स्टाइल मार रहा है, वही स्टाइल, बट इसका मीनिंग यहाँ पे अलग है. A long straight path is also called as a style. So ये style है, long straight path. And at the bottom of this, here somewhere you are going to get the expanded base, which we call as the ovary. So let's show this. ये ovary है. Now inside the ovary there will be the ovule. We are showing an ovule which is having its base and attachment called placenta at the base of the ovary. So this is what we call as basal placentation. But इसके थोड़े और फॉर्मेट्स भी हो सकते हैं जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, such as parietal placentation, central placentation and so on. But हम इसमें एक टिपिकल ऐसा ओव्यूल देख रहे हैं जिसमें बेसल प्लेसेंटेशन है. अब ये पार्ट्स देखते हैं एक 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 एक. सो ये जो पार्ट है ये ऑफ कोर्स ओवरी है, OVARY. दिस इज द स्वोलन बेस ऑफ द गाइनीशियम. आगे चल के आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड एवरीथिंग, ओवरी इज गोइंग टू इवेंचुअली बिकम फ्रूट. ओवरी के अंदर ये ओव्यूल है. आफ्टर फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन सब होने के बाद ओव्यूल जो है that is going to develop into seed. So ये बाहर वाला फ्रूट, अंदर वाला सीड, ये आगे चल के क्या कहानी होने वाली है. बट एक एक ओव्यूल का डिटेल स्ट्रक्चर अब हम देखना चाहते हैं. तो फ्लावर के अंदर ये गाइनीशियम था, also called pistil, made up of individual members called carpels. एक एक ऐसे कार्पल को या एक एक सिंगल गाइनीशियम के स्ट्रक्चर को हमने थोड़ा मैग्नीफाई करके यहाँ पे दिखाया है with its main parts stigma, style, ovary and ovule. अब ओवरी के अंदर ओव्यूल वाला ये पार्ट जो है, इसको हम थोड़ा और मैग्नीफाई करके और बढ़िया दिखाएंगे so that we can see the parts of the ovule. So let's clear this part. फ्लावर के साथ हमारा काम अब खत्म हो चुका है, सो इसको हम हटा देते हैं. एंड इसकी जगह पे
इसके एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर को अभी हम ड्रॉ करते हैं। सो ये ओवरी है, inside the ovary near the base is where we are trying to draw the placenta। ये जो एक थोड़ा सा व्हाइटिश अपीयरेंस का सॉफ्ट पार्ट होता है that is called placenta। प्लेसेंटा से ओव्यूल की डंडी शुरू हो जाएगी that is called funiculus। सो ये जो पार्ट है ये है funiculus, और यहां से इसके अंदर enclosed in two protective layers like this is the actual geniculous part। We have used the word geniculous to mean something which is actually going to give birth to। So ये जो actual अंदर का geniculous part है, इसके अंदर आगे चल के मेगास्पोर बनने वाला है। जैसे एंथर में पोलन सैक के अंदर माइक्रोस्पोर बन गया, एंड सो pollen sac was geniculous part, the microsporangium। वैसे यहाँ पे ये nucellus is the name of this part, which is where the megaspore is going to develop। but इसके बाकी जो parts है ये सारे अभी हम देख लेते हैं। so सबसे पहले तो ये है placenta। this is called placenta। now this is very easy to understand। even in human body, यूट्रस की वॉल से लेकर अम्बिलिकल कॉर्ड से बेबी की तरफ न्यूट्रिशन ले जाने के लिए जो स्ट्रक्चर है वो प्लेसेंटा है। सो जैसे वहां प्लेसेंटा है वैसे यहां पर भी ये प्लेसेंटा है, इसी के थ्रू न्यूट्रिशन आने वाला है फॉर द डेवलपिंग ओव्यूल। नाउ दिस स्टॉक यानी कि डंडी, ये जो है दिस इज कॉल्ड फ्यूनिकुलस। FUNICULUS, ये इसका फ्यूनिकुलस है। फ्यूनिकुलस इज द स्टॉक, डंडी ओव्यूल की। इसके बाद ये जो पार्ट है इसको थोड़ा हम डॉटेड लाइन से थोड़े अलग कलर से दिखाते हैं। सो ये जो पार्ट है ये आपका एक्चुअल ओव्यूल है। अब ये एक्चुअल ओव्यूल, इसको एक साइड थोड़ा ऐसा राउंडेड एंड क्लोज्ड है और एक साइड पे एक छोटा सा ओपनिंग आप देख सकते हैं, यहां पे खुला है, देयर इज अ ओपनिंग। सो ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज और दिस साइड इज कॉल्ड शलाजा, CHLAZA। ये शलाजा कह के बुलाया जाता है। एंड द ओपनिंग विच इज प्रेजेंट, इस ओपनिंग को हम कहते हैं माइक्रोपाइल, MICROPYLE, माइक्रोपाइल। माइक्रो मीन्स स्मॉल, माइक्रोपाइल मीन्स अ स्मॉल ओपनिंग। ये ओपनिंग क्यों दिया गया है? सो दैट द पोलन ट्यूब कैन एंटर एंड ब्रिंग द मेल गैमीट्स। नाउ all of this which we see over here, so all of this part and this part, ये चारों तरफ से, पूरे गोल सब तरफ से इसके प्रोटेक्टिव लेयर्स है फॉर प्रोटेक्शन। सो दीज आर कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्स। we'll put that over here। ये जो दो दिख रहे हैं ये दोनों इसके इंटेग्यूमेंट्स है, INTEGUMENTS, इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स मींस स्किन या प्रोटेक्टिव लेयर्स। दो इंटेग्यूमेंट लेयर्स है, आउटर एंड इनर। एज यू कैन सी, ये एक बाहर का, ये एक अंदर का। ऐसे दो लेयर्स इस तरफ से भी है, इस तरफ से भी है। इंटेग्यूमेंट्स आगे चल के जब ओव्यूल का सीड बन जाएगा तो इंटेग्यूमेंट्स सीड के प्रोटेक्टिव लेयर्स कॉल्ड सीड कोट, और आपको 11th स्टैंडर्ड से याद होगा, the seed coat has two layers, outer hard and tough part called testa and inner soft papery कागज के जैसा part called tegmen। ऐसे दो layers seed को होते हैं। so इनकी ये शुरुआत है। at this stage ovule के ये इंटेग्यूमेंट्स है, और इन्हीं का आगे चल के जब ओव्यूल का सीड बनेगा तो इंटेग्यूमेंट्स का सीड कोट या सीड का प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगा। एंड बिकॉज दैट इज डबल लेयर, टेस्टा एंड टेगमेन, तो इंटेग्यूमेंट्स भी यहां हमको डबल लेयर ही दिख रहे हैं। अब इंटेग्यूमेंट्स प्रोटेक्शन के लिए है तो थोड़े टफ है,
तो पोलन की एंट्री के लिए कहीं पे दरवाजा छोड़ना जरूरी है। तो जैसे पोलन ग्रेन में बाहर आने के लिए एक जर्म पोर रखा था, वैसे यहां पे पोलन ट्यूब को अंदर जाने के लिए एक ओपनिंग रखना जरूरी है, वो उसका माइक्रोपाइल है। आगे चल के जब ओव्यूल का सीड बन जाएगा तो माइक्रोपाइल सीड में भी प्रेजेंट रहेगा, एंड सीड के जर्मिनेशन के लिए जो पानी जाना है, सीड रिक्वायर्स वाटर फॉर जर्मिनेशन, द माइक्रोपाइल ऑफ द सीड will allow water to come in for germination. So micropyle at this stage, its function is to allow entry of pollen tube. Afterwards, its function will be to allow entry of water for germination. So ये कुछ parts है। अब ये funiculus और ये सारा rest of the ovule जहां पे actually attached है, जहां पे फिनिकुलस को बचा हुआ ओव्यूल चिपका हुआ है, वहां पे एक छोटा सा स्कार जैसा थोड़ा सा थिकन्ड पार्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड हाइलम, HILUM. नाउ दिस विल रिमेन एज अ स्कार, एज अ हाइलम इन द सीड ऑल्सो। सो बाद में ओव्यूल का जब सीड बन जाएगा और ये निकल के आ जाएगा, तो भी ये फिनिकुलस का मार्क जहां वो चिपका था वो अटैच्ड रहेगा और वो मार्क प्रेजेंट रहेगा। दिस इज एग्जैक्टली लाइक हम में भी एक प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड है और वो नेवल में, नाभि में अटैच्ड है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड निकलने के बाद भी नेवल, नाभि जो है, ऑल्सो व्हाट इज कॉल्ड एज बेली बटन, इज स्टिल प्रेजेंट इन अस ऑल्सो एज अ स्कार। वैसे ही यहां पर भी ये स्कार की तरह रहेगा। ये जो इंटेग्यूमेंट्स है, ये कभी कभी इस एरिया में थोड़े से थिक हो जाते हैं, दोनों तरफ से आकर एक छोटा इलोंगेटेड रेज्ड रीजन कभी कभी दिखाते हैं। इफ प्रेजेंट देन दैट इज कॉल्ड रैफी, RAPHE. So now let's revise the parts in sequence, starting from placenta. So placenta is where the ovule and funiculus is attached to the wall of the ovary. In this case, it is attached to the base at the bottom of the ovary. So this we call basal placentation. Placenta के बाद funiculus, the stalk, dundee for the ovule. Then the point of attachment of the ovule to the funiculus called hilum. So this is hilum. The protective layers on two sides, integuments, and integuments sometimes have a raised scar that is called raphe. Ovule का rounded part जो है वो शलाजा है, rounded and smooth closed part शलाजा है, and उसकी ठीक opposite side को, on the opposite pole, जो एक इंटेग्यूमेंट्स में ओपनिंग दिया गया है, उसका नाम है माइक्रोपाइल। दोनों इंटेग्यूमेंट्स प्रोटेक्टिव है। अब ये सब होने के बाद जो मेन पार्ट रह जाता है वो बीच का, यहां का पार्ट। सो दिस पार्ट, ऑल ऑफ दिस इज द एक्चुअल जेनेशियस पार्ट। इसी के अंदर सारी आगे की एक्चुअल मेन डेवलपमेंट मेगास्पोर की होने वाली है। सो इसको अभी हम देख लेते हैं। सो लेट्स कवर दिस, remove this, and let's now clear this also. Let's make this nicely again. ये हमारा न्यूसेलस है। चलो इसको हम दोबारा बनाते हैं। ये न्यूसेलस। Now, just as पोलन सैक के अंदर माइटोटिक डिविजन्स होके नंबर्स बढ़े थे, वैसे यहाँ पर भी सेल्स की थोड़ी डिविजन्स होगी, बट बहुत ज्यादा डिविजन्स नहीं होती है, क्योंकि फीमेल साइड पे वी डोंट वांट so many megaspores. In fact, we want only one single megaspore. ऐसा क्यों? एक ओव्यूल में एक मेगास्पोर होगा तो एक फीमेल गैमीट हो जाएगा, तो एक जाइगोट, एक एम्ब्रियो और आगे चल के एक पौधा बनेगा। एक सीड लगाने के बाद एक पौधा बनेगा, तो उसकी परवरिश, उसकी केयर, उसकी डेवलपमेंट सक्सेसफुली प्रॉपरली हो जाएगी।
एक सीड लगाकर उस पर से एक साथ 25-25 पौधे अगर निकल के आएंगे तो उनमें से एक को भी जिंदा रहने का चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि वन सीड विल नॉट बी एबल टू गिव सो मच फूड फॉर इनिशियल डेवलपमेंट एंड आफ्टरवर्ड्स इतना ओवर क्राउडिंग एक साथ इतने होने की वजह से न उनको सनलाइट ठीक से मिलेगा, न पानी ठीक से मिलेगा, न न्यूट्रिशन ठीक से मिलेगा, न उनके रूट्स लीव्स सफिशिएंटली अच्छे ग्रो हो पाएंगे, कुछ भी ठीक से नहीं हो पाएगा. सो फीमेल साइड वी वांट प्रेफरेबली one single egg, so one single megaspore. So in one ovule we don't want too many divisions, so शुरू में थोड़ी थोड़ी divisions रहेगी and so you will get a few cells something like this, ऐसे थोड़ी cells. This cellular structure inside is called nucellus. Very important part. NUC. एक मिनट, ये बाहर थोड़ा जा रहा है, इसको मैं अलग जगह लिखता हूं. सो लेट मी क्लियर दिस ओवर हियर. लेट्स लेबल इट एल्सवेयर. इसको इस तरफ हम खींचते हैं. ये न्यूसेलस है. NUCELLUS. न्यूसेलस. This is the actual genesis part, and so our textbook calls this as the megasporangium, क्योंकि इसके अंदर मेगास्पोर डेवलप होने वाला है. एनसीईआरटी बुक में पूरे ओव्यूल को ही मेगास्पोरेंजियम नाम दिया गया है, which is also not wrong. तो नीट के लिए एनसीईआरटी सिलेबस है तो याद रखो कि स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में न्यूसेलस को मेगास्पोरेंजियम बोला गया है. स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक, सो बोर्ड के लिए आप याद रखो न्यूसेलस इज मेगास्पोरेंजियम, बट नीट के लिए याद रखो एंटायर ओव्यूल को नाम दिया गया है मेगास्पोरेंजियम. दोनों बातें सही है. एक बोर्ड ने ये अपनाया है, दूसरे बोर्ड ने दूसरा अपनाया है, बट वी हैव टू रिमेंबर बोथ बिकॉज वी हैव टू अपीयर फॉर बोर्ड एग्जाम ऑल्सो एंड वी हैव टू अपीयर फॉर नीट ऑल्सो. सो ये बात याद रखो. सो इस न्यूसेलस के अंदर आगे चल के मेगास्पोर डेवलप होने वाला है. वो कैसे डेवलप होगा, उसमें क्या स्टेप्स होगी, ये हम आगे चल के देखेंगे. न्यूसेलस के सेल्स माइटोटिकली डिवाइड हुए हैं. अभी तक मायोसिस हुआ नहीं है, सो ये सेल्स डिप्लॉयड हैं. इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, यू कैन बी आस्क्ड क्वेश्चंस, न्यूसेलस के सेल्स हैप्लॉयड है कि डिप्लॉयड है? इस वक्त डिप्लॉयड है. इसमें से एक सेल उसका मायोसिस हो जाएगा. इट विल बी द मेगास्पोर मदर सेल which will undergo meiosis to produce a megaspore, and then that megaspore will have 4 haploid cells. that initially 4 रहेंगे, उसमें से एक रहेगा. ये सारी स्टेप्स और डेवलपमेंट हम आगे चल के देखेंगे. अभी के लिए हम यहाँ तक आगे हैं कि फ्लावर के अंदर गाइनीशियम या पिस्टल था मेड अप ऑफ कार्पल्स. एक इंडिविजुअल गाइनीशियम का स्ट्रक्चर हमने देख लिया मैग्निफाइड, जिसमें थे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल. ओव्यूल को सिर्फ हमने यहाँ मैग्निफाई करके ओव्यूल का डिटेल स्ट्रक्चर देख लिया. ओव्यूल में वी सॉ प्लेसेंटा, फ्यूनिकुलस, हाइलम, रैफी, शलाजा, माइक्रोपाइल, इंटेग्यूमेंट्स एंड न्यूसेलस. नाउ दिस ओव्यूल which we have shown over here, इसमें आप नोट करोगे कि यहाँ पे प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के ऊपर माइक्रोपाइल है और माइक्रोपाइल के ऊपर शलाजा है. सो इसको अलग कलर से अगर मैं दिखाऊं तो दी प्लेसेंटा, माइक्रोपाइल एंड शलाजा all in one straight axis which is adjacent to the axis, to the long axis of the funiculus. So funiculus or placenta, micropyle, shalaza, in that order. इनकी दो ये जो ब्लू कलर की हम मेन लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस दिखा रहे हैं, ये एक दूसरे की बाजू में है. दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट, दिस काइंड ऑफ ओव्यूल, जिसमें फिनिकुलस ऐसे जाके उसने ओव्यूल को एक तरीके से ऐसे बगल में जैसे पकड़ा हो, so that micropyle is towards placenta, shalaza is on opposite side. ये अरेंजमेंट जो है, this is
the most commonly found arrangement in all different flowering plants. And so we are studying this. This kind of arrangement is called anatropous ovule. So let's write that over here. This is called anatropous. 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 This is important. मैं इसको रेड सर्कल में डाल रहा हूं. Anatropous ovule. This is the most common form. In anatropous ovule, placenta, micropyle and chalaza को कनेक्ट करने वाली लॉन्ग एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस और फ्यूनिकुलस की इमेजिनरी लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस दोनों एडजेसेंट, एक दूसरे के बाजू बाजू में होते हैं. दिस इज द कॉमनेस्ट फॉर्म. इसके अलावा there are some other forms also where the arrangement is a little different, such as hemianatropous, campylotropous, circinate and orthotropous and so on. ये क्या होते हैं? ये मेन नीट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट कभी कभी पूछा जा सकता है. इन टाइप्स को हम अलग से देख लेंगे. अभी के लिए we are mainly interested in the commonest typical form, which is anatropous ovule. तो ये हमने देख लिया. इस ओव्यूल के अंदर, न्यूसेलस के अंदर मेगास्पोर की डेवलपमेंट कैसे होगी वो हम इसके बाद देखते जाएंगे. सो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल स्टडी कर लिया है. ये वीडियो, ये लेक्चर यहाँ पे हम खत्म करेंगे. अगले लेक्चर में आगे की बात देखेंगे. Thank you very much for listening to the lecture. Jai Hind. Hello everyone. Welcome to this lecture on formation of the megaspore. This is a short video in which we will try to study how the megaspore is developed. So इसके पहले हमने क्या देखा है? हमने ये देखा हुआ है कि फ्लावर है. फ्लावर के अंदर केलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनीशियम है. गाइनीशियम में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और उसके अंदर ओव्यूल है. ओव्यूल में हमने पार्ट्स देखे हैं जैसे कि प्लेसेंटा, फ्यूनिकुलस, हाइलम, इंटेगुमेंट्स, शलाजा, माइक्रोपाइल एंड इनसाइड ऑल ऑफ दिस न्यूसेलस. न्यूसेलस में इनिशियली माइटोसिस होके कुछ सेल्स बने हैं और इन्हीं में अब मायोसिस होकर मेगास्पोर बनने वाला है. सो यहां से आगे की कहानी, न्यूसेलस के अंदर मेगास्पोर कैसे डेवलप होता है, ये अब हमको देखना है. सो ये अब तक की हिस्ट्री रही, इसको अभी हम क्लियर कर देते हैं एंड न्यूसेलस पे अपना ध्यान रखते हैं. सो लेट्स ड्रॉ वन ओव्यूल with integuments, placenta and nucellus inside. So this is chalazal end, this is micropyle side, these are integuments, outer and inner, this is hilum, this is funiculus. Inside all of this, this is nucellus which we are mainly interested in. ये है हमारा nucellus, NUCELLUS. ये nucellus हो गया. nucellus के अंदर कुछ cells है, not too many, but a few cells. Something like this. Now, out of all of these different cells, all will not undergo meiosis. Pollen sac में all the cells were undergoing meiosis because we wanted lots of pollen grains. We want lots of pollen grains because pollination में सब successfully transfer नहीं होते हैं. So to improve the probability, to improve the chances of transfer, we want lots of pollen grain. But we don't want many megaspores because we don't want many female gametes, because we want only one zygote developing in one ovule, so that when we sow one seed,
you will get one embryo and from that you will get one seedling, एक सीड से एक पौधा, so that उसकी केयर एंड अपब्रिंगिंग, उसकी डेवलपमेंट अच्छी हो जाएगी। एक सीड में मल्टीपल पौधे आएंगे तो उनकी एक्सेस कंपटीशन हो जाएगी, they will not get sufficient sunlight, they will not get sufficient food, they will not get sufficient water and nutrients, they will all die. So we want only one of them to develop. And so what we find is generally micropyle वाली जो साइड है, यहाँ से एक बाहर का लेयर छोड़ के जो सेल है, so यानी कि somewhere here ये वाली जो सेल है, ऐसी कोई एक सेल इसके आगे थोड़ी ज्यादा डेवलप होती है और that becomes the megaspore mother cell. So as the ovule is growing, these grow a little slower and this one cell grows faster, and so it starts taking up much bigger space and that becomes the megaspore mother cell, MEGASPOREMOTHERCELL, megaspore mother cell. In short, we can write this as MMC, megaspore mother cell. So ये megaspore mother cell यहाँ पे meiosis होने वाली है. This is the myocyte which is going to undergo meiosis. So after meiosis, what will happen over here? Let's try to see that. So इसको थोड़ा rub कर देते हैं, इसको थोड़ा clear कर देते हैं, and after meiosis क्या होने वाला है वो देखने के लिए हम कुछ ऐसी अरेंजमेंट बनाते हैं कि जिसमें अब ये मेगास्पोर मदर सेल की meiosis होने वाली है. So in meiosis there is a meiosis 1 in which 2 nuclei and 2 cells will be formed, and afterwards a second meiosis will take place. Now in this case what we find is both meiosis happen in the same axis. So एक सेल के 2 सेल्स होने के बाद ये 2 के 4 भी ऐसे ही एक ही स्ट्रेट लाइन में बन जाते हैं, and so you get in one straight line 4 haploid cells, 1, 2, 3 and 4, all 4 of which can now be called as megaspores, MEGASPORES, megaspores. ये सब के सब haploid है क्योंकि meiosis complete हो चुकी है. बाकी ये जो थे ये सब सेल्स न्यूसेलस के डिप्लॉयड थे. सो न्यूसेलस के सेल्स हैप्लॉयड होते हैं कि डिप्लॉयड होते हैं? न्यूसेलस के सेल्स एक्चुअली डिप्लॉयड होते हैं, बट जिसमें से एक सेल का meiosis हो जाएगा तो उसके बाद जो बनेंगे वो हैप्लॉयड मेगास्पोर्स बनेंगे. अब हमको तो 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर्स नहीं चाहिए क्योंकि फिर 4 एग्स बनेंगी, फिर 4 पौधे बनेंगे एक सीड से. वी वांट ओनली 1. So what we find in nature क्या होता है कि जैसे इसकी और डेवलपमेंट आगे बढ़ती है तो इन 4 में से एक ही, जिसको हम थोड़ा अलग कलर से दिखाएंगे, एक ही एक्चुअली आगे बढ़ेगा और बाकी जो है इनको थोड़ा ब्लैक से दिखा देते हैं, ये बाकी वाले हट जाएंगे. In other words, they will not develop but instead they will shrink, become small and eventually they will die off. So 3 megaspores will not develop, they will get destroyed and only 1 will remain. So afterwards, how this will look, to understand that, let's make now a diagram of only the megaspore, not the rest of the nucellus and all that. इतना ही पार्ट इसको हम कैसे डेवलप होता हुआ देखते हैं वो दिखाने के लिए ये डायग्राम हम क्लियर कर देते हैं. In this diagram we have shown how you get 4 megaspores. These 4 megaspores are in one straight line, and so we call this as a linear tetrad. So let's write that. This is called linear tetrad, Linear, linear यानी कि one straight line में linear tetrad because there are 4 cells. Tetra means 4, so linear tetrad, 4 cells in one straight line, एक ही सीधी लाइन में, एक ही लाइन में है इसलिए लीनियर. ये लीनियर टेट्राड में से 3 सेल्स गायब हो गई, एक रह गया, दैट इज गोइंग टू बिकम द फंक्शनल मेगास्पोर. सो ये हम अलग से दिखाते हैं, यहां अब ये हटा देते हैं.
ये हटाकर अब यहाँ पे ये न्यूसेलस के अंदर ये मेगास्पोर की डेवलपमेंट होने के बाद ये लीनियर टेट्राड 1, 2, 3 और 4 न्यूक्लियाई, 4 सेल्स वाले 4 मेगास्पोर्स. So 1, 2, 3, 4, all 4 megaspores, all haploid, so all with n number of chromosomes. Out of these, as we said, 3 will disintegrate. 1, 2, 3. कौन से 3? तो जहां माइक्रोपाइल है इस साइड से जो 3 है, ये न्यूसेलस के बाकी के सेल्स हैं. इसके अंदर ये 3 डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, ये एक ही बचा रहेगा. सो ये डेवलपमेंट लेट्स शो इट हियर. यहाँ पे अब ऐसे हो जाएगा कि जैसे न्यूसेलस आगे बढ़ता जाएगा और बड़ा होता जाएगा, एक ही सेल रह जाएगा और बाकी 3 जो है वो एट्रोफीड, छोटे छोटे ही रह जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, उनका साइटोप्लाज्म छोटा हो जाएगा, एंड यू विल बी लेफ्ट विथ ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर. दीज आर डिस्ट्रॉयड. So one that is left now is called the functional megaspore, जो actual काम का है, जो actual function में participate करने वाला है. आगे function है reproduction, so actual reproduction function में जो काम करेगा वो है functional megaspore. So this one remaining part is the functional megaspore. Let's write that here. Functional, Functional, functional megaspore. MEGASPORE, functional megaspore. ये एक रह गया. This is always of course going to be haploid, n number of chromosomes only. इसके आगे इसकी डेवलपमेंट क्या होती है? तो मेगास्पोर डेवलप होके फीमेल गैमीटोफाइट बनता है कॉल्ड एम्ब्रियो सैक. ये डेवलपमेंट कैसी होगी, इसमें क्या स्टेप्स होंगे, कितने माइटोसिस होंगे, कैसे कैसे न्यूक्लियाई और उनकी अरेंजमेंट होती जाएगी, ये सब एक अलग विषय है, एक अलग टॉपिक है जिसको हम इसके अगले लेक्चर में ले लेंगे. हम ऐसे छोटे छोटे लेक्चर्स करते जा रहे हैं ताकि आप वो लेक्चर छोटा ही सही, 20-25 मिनट का ही सही, पूरे तरीके से समझ लो, वो समझकर आगे बढ़ते जाओ. सो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, कदम कदम आगे बढ़ रहे हैं. सो यहाँ तक मेगास्पोर फॉर्म कैसे हुआ, 1 सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर कैसे रह गया, ये हमने देख लिया. इसके आगे के लेक्चर में हम इस फंक्शनल मेगास्पोर की आगे की डेवलपमेंट, सो दैट इट बिकम्स अ फीमेल गैमीटोफाइट. Microspore developed into male gametophyte, pollen grain. Megaspore will develop into female gametophyte called embryo sac. So development of embryo sac, steps in that we will see in the next video. Thank you very much for watching this video. I hope you get to learn what you need for your exams through this. Dhanyavad or Jai Hind. Hello everyone. Welcome to this video lecture based on the topic development of the embryo sac. Embryo sac represents the female gametophyte in the flower. So development of the embryo sac can also be called as development of female gametophyte. Microspore का आगे development होकर pollen grain बन गया, that was male gametophyte. Megaspore का development होकर फीमेल गैमीटोफाइट बन जाएगा जो कि कहलाएगा एम्ब्रियो सैक. सो इनसाइड द न्यूसेलस व्हिच वाज इनसाइड द ओव्यूल, व्हिच वाज इनसाइड द ओवरी, द मेगास्पोर इज गोइंग टू डेवलप. ये हमने ऑलरेडी डेवलपमेंट पहले देख लिया है. लेट्स टेक अ क्विक रिकैप, 2 minute short recap of that. So what we saw is there is of course the calyx, corolla, androecium, Gynoecium made up of stigma, style, ovary, ovule. Ovule के अंदर placenta, funiculus, hilum, raphe, integuments, nucellus. Nucellus के अंदर एक सिंगल सेल बड़ा होकर उसमें मायोसिस होकर
linear tetrad, all four in a straight line, linear tetrad of megaspores, all haploid, ये बन गया, जिसमें से 3 डिस्ट्रॉय हो गए, डिसइंटीग्रेट हो गए, एक रह गया as functional megaspore, and so inside the nucellus we had one functional megaspore with haploid set of chromosomes. यहां तक हमने इसके पहले देख लिया है. इसके आगे ये डेवलप हो जाएगा, इसके कुछ सेल डिविजन्स होंगे, एंड दिस विल नाउ स्टार्ट बीइंग कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक. इट विल नाउ बी कॉल्ड आल्सो एज फीमेल गैमेटोफाइट. सो ये डेवलपमेंट्स क्या होती है, ये इसके आगे, सो इसके आगे ये पार्ट हमको कंसंट्रेट करना है. सो ये अब तक की हिस्ट्री रही, इसके आगे क्या होगा ये देखते हैं. सो लेट्स क्लियर दिस पार्ट एंड ड्रॉ ओवर हियर. इसको हटाओ भाई. Yes, let's draw over here one single functional megaspore with one haploid nucleus and its cytoplasm. So this is one functional megaspore जो एक actually रह जाता है पीछे, functional megaspore. इसके साथ ही बने हुए और 3 मेगास्पोर्स थे जो छोटे रह गए, एंड सो 1 2 3 ये डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं. सो ओनली वन फंक्शनल मेगास्पोर इज लेफ्ट. नाउ दिस हैज वन सिंगल न्यूक्लियस. दिस न्यूक्लियस इज गोइंग टू गो थ्रू 3 माइटोटिक डिविजन्स. पहली डिवीजन के बाद एक न्यूक्लियस के 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे, दोनों तरफ चले जाएंगे. वहां उनकी सेकेंड डिवीजन हो जाएगी तो हर एक के 2 बन जाएंगे, सो 4 न्यूक्लियाई बन जाएंगे. फिर इनकी भी और एक डिवीजन होके और 2 न्यूक्लियाई इस तरफ और इस तरफ, सो टोटल 8 न्यूक्लियाई बन जाएंगे. इनकी कुछ रीअरेंजमेंट हो जाएगी. ऐसे बहुत कुछ स्टेप्स होने वाली है. तो इनको स्टेप वाइज दिखाने के लिए हम यहां से डायग्राम बनाना शुरू करेंगे एंड स्टेप वाइज एक डायग्राम बनाएंगे. आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस करो. बोर्ड एग्जाम में ऐसा फुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक और उसकी ये अलग अलग स्टेप्स देखने के लिए. सो ये सारी खिचड़ी जो एक साथ दिख रही है इसको हम अलग डायग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे. सो लेट्स रिमूव दिस एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. यहां हम पहले वाला एक सिंगल न्यूक्लियस वाला मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर एक जो बचा हुआ है, यहां से शुरुआत. फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इसकी माइटोसिस डिवीजन होके इसके 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे. सो दिस विल बिकम लाइक दिस, 1 न्यूक्लियस, सेकेंड न्यूक्लियस. नाउ आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यूक्लियाई एक्चुअली वी एक्सपेक्ट कि इसमें कहीं पे एक सेल वॉल आ जाएगी, लेकिन यहां सेल वॉल नहीं आती है. मेगास्पोर की डेवलपमेंट टू फॉर्म एम्ब्रियो सैक, इसमें एक पिक्यूलियर बिहेवियर दिखता है, एक पिक्यूलियर फिनोमेनन दिखता है which is called free nuclear divisions. This is important, so let me write this. This is called free, F-R-E-E, free nuclear, N-U-C-L-E-R, nuclear divisions, D-I-V-I-S-I-O-N-S. Free nuclear divisions का मतलब है कि nucleus keeps dividing freely, एक के बाद एक, without cytokinesis. So cell walls will not be laid. So ये वाला जो पार्ट है cell wall वाला, ये नहीं बनने वाला, इसको हम हटा देंगे. So 2 न्यूक्लियाई बनेगी, 2 की 4 बनेगी, 4 की 8 बनेगी, and nucleus will keep dividing to form 8 nuclei, but cell cytoplasm will not divide to form separate cells. So you get one mass of cytoplasm in which there are multiple nuclei. इस टाइप की सेल डिवीजन को हम कहते हैं फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स. सो ऐसे फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होने जा रहे हैं, एंड देन नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों न्यूक्लियाई दोनों पोल्स की तरफ जाएंगे.
दोनों पोल्स का मतलब ये है कि एक तरफ शलाजा है SHALAZA और दूसरी तरफ माइक्रोपाइल है। सो PYLE, क्योंकि अगर आपको याद होगा ये फ्यूनिकुलस, इसके अंदर न्यूसेलस, इसके अंदर मेगास्पोर, इसके अंदर ये डिविजन्स हो रही है, तो एक तरफ माइक्रोपाइल है, दूसरी तरफ शलाजा है। ये शलाजा साइड है, ये माइक्रोपाइल साइड है, इसलिए एक तरफ शलाजा एक तरफ माइक्रोपाइल। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये दोनों एंड्स को, एक शलाजा पोल को और एक माइक्रोपाइल पोल को पहुंचने के बाद नेक्स्ट स्टेप में इसमें एक और डिवीजन हो जाएगी और ये 1 2 सो दिस इज सेकेंड माइटोसिस। इसके बाद एक और डिवीजन हो जाएगी जिसकी वजह से क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और इस तरफ भी 1 2 3 4 न्यूक्लियाई, टोटल 8 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। सो फर्स्ट मायोसिस, migration of the nuclei to the two poles, second meiosis, and then first mitosis, second mitosis, third mitosis. So third division होने के बाद 8 nuclei in one common cytoplasm ये बन गए हैं। इसके बाद क्या होगा वो देखने के लिए हम दोबारा पीछे चले आते हैं और यहां पे अपना डायग्राम बनाते हैं। सो यहां पे आपको मिलेगा, अब एक थोड़ा रीअरेंजमेंट हो जाएगा। सो 3 न्यूक्लियाई शलाजल एंड के पास ही रह जाएंगे, 3 न्यूक्लियाई माइक्रोपाइल एंड के पास ही रह जाएंगे, लेकिन यहाँ का चौथा न्यूक्लियस और यहाँ का चौथा न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियाई बीच में चले आएंगे। सो दे विल माइग्रेट टू द सेंटर फ्रॉम द 2 poles. So you will get a particular arrangement in which there are 3 nuclei near shalaza, 3 nuclei near micropyle and 2 nuclei in the center. Total 8 nuclei. ये अरेंजमेंट होने के बाद अब एक्चुअली सेल वॉल फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, एंड सो दिस विल गिव टू द नेक्स्ट स्टेप इन विच, इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं, इसको तो स्किप कर, चलो ओके, इसको हम यहां ऐसे बनाते हैं। ये I hope all of you can see this on your screen. Yes, it can be visible. इसके अंदर अब सेल वॉल एक पर्टिकुलर तरीके से ले डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से 3 सेल्स शलाजल एंड की तरफ, 3 सेल्स माइक्रोपाइल एंड की तरफ और एक बीच में बड़ा सेल विथ 2 न्यूक्लियाई, डबल न्यूक्लिएटेड सेल रह जाएगा। This results in 1 2 3 4 5 6 and 7 cells and 1 2 3 4 5 6 7 8 nuclei, 7 celled 8 nucleate stage बन जाएगा, which is the most commonly described common form of the developed female gametophyte, also called as the embryo sac. इस डायग्राम को, ये जो इंडिविजुअल सेल्स है इनके क्या नाम है, कैसे इनको हम बुलाएंगे, वो देखने के लिए ये डायग्राम हम मैग्नीफाई करेंगे। बट ये स्टेप वाइज जो दिखाया, 1 माइटोसिस, फर्स्ट माइटोसिस के बाद 2 न्यूक्लियाई, बोथ न्यूक्लियाई माइग्रेटेड टू द पोल्स, 1 to shalaza side, 1 to micropyle side, underwent second mitosis, resulted in a 4 nucleate stage, 2 at shalaza, 2 at micropyle. Then a third mitosis, 4 nuclei at shalaza, 4 nuclei at micropyle. No cell divisions all through this.
चार चार में से एक एक न्यूक्लियस सेंटर की तरफ बीच में माइग्रेट हो गए. सो यू गॉट अ रीअरेंजमेंट विथ 3 nuclei towards Shalaza, 3 nuclei towards micropyle, and 2 nuclei coming from both poles at the center. Then cell walls got laid down so that these 3 cells became separate, these 3 cells became separate, and one large central cell was left behind. ये cells की क्या नाम है वो अब हमको देखना है. So let's clear all of this. इसको हटा लेते हैं. And let's draw the final product. 1, 2, 3 cells and 3 nuclei towards Shalaza. ये Shalaza side है. One, 2, and 3 cells towards micropyle. So ये micropyle side है. MICROPYLE. PYLE micropyle. ये micropyle side, ये Shalaza side. एंड बीचों बीच 2 न्यूक्लियाई जो अभी तक तो सेपरेट है और इनके पास सबसे ज्यादा साइटोप्लाज्म बन गया है. सो ये बड़ा एक सेल बीच में बन गया है. 3 छोटे सेल्स इस तरफ, 3 छोटे सेल्स इस तरफ. नाउ द 3 सेल्स व्हिच आर ऑन द Shalaza साइड, इन तीनों को मिलके हम कहते हैं एंटीपोडल्स. सो दीज आर लेबल्ड एज ANTIPODALS, एंटीपोडल्स. एंटी मीन्स ऑपोजिट. सो मेन पार्ट्स एग वगैरह जो है वो इस तरफ है. सो इसके ऑपोजिट साइड को जो है वो एंटीपोडल्स हो गए. अब ये तीनों जो सेल्स यहाँ रह गए हैं, इन तीनों को मिलके वी कॉल दैट एज एग apparatus. EGGAPPARATUS, egg apparatus. So this is called egg apparatus because इसमें ये actual egg है. The female gamete, actual अंडा, egg, वो है. बट ये बाजू के जो 2 सेल्स हैं वो इसको मदद करने वाले हैं. तो तीनों मिलके फर्टिलाइजेशन के लिए मदद करने वाले हैं. बाजू के 2 सेल्स एक्चुअल फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनका न्यूक्लियस के फ्यूजन में नहीं इन्वॉल्व होगा, बट दे आर हेल्पिंग. सो बिकॉज दे आर हेल्पिंग, we call those 2 cells as synergids. Synergy means joining या helping kind of relationship. So इन दोनों का हम synergids कहेंगे और बीच का जो है वो actual egg cell या gamete होगा. ये बीच में जो रह गए, because these 2 nuclei came from the 2 poles, they are often called as polar nuclei. दोनों मिलके, दोनों को कहते हैं polar nuclei. POLAR NUCLEI, polar nuclei. All of this cell is called central cell. CENTRAL, central cell. So ये बीच का central cell, ये egg apparatus. अब egg apparatus के further cells क्या है? तो ये 2 जो है, 1 और 2, they are called synergids. SYNERGIDS, synergids. And one single cell, this is the actual egg cell, yeah, the actual female gamete. So this is the female gamete. This way you get an arrangement in which there are, as we said, 3 antipodals, 1, 2, 3 cells in the egg apparatus, 2 synergids, and synergids, SYNERGIDS, correct, 2 synergids and 1 egg cell. All of this is the egg apparatus, and 1 large central cell with 2 nuclei. This 7-celled 8 nucleate stage is the most commonly described cell arrangement in the case of development of the embryo sac
All of this is going to be called embryo sac, and it represents the female gametophyte. It has produced the female gamete over here. So this is quite correctly the female gametophyte. अब इसके आगे जो होगा वो फर्टिलाइजेशन के बाद, जो कि पॉलिनेशन के बाद होगा. सो इसके बाद हम पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन वगैरह ये देखने जाएंगे. यहाँ पे हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक इज कंप्लीट. Here we stop this lecture for now. धन्यवाद and Jai Hind.